infant 0 to 6 years, or even in the womb. In the womb also children face violence, and they can hear. Now it has been established that the child in the womb hears. So you can say there is the the prenatal child, then the 0 to 6 years child, and the child who has just started school, that child is there, then the adolescent child. And so children go through many stages in life, and violence kind of is an underlying thing. It is very hidden, insidious violence. Parents, when they slap children or when they over discipline a child, they're probably doing more harm to the child than they are doing, than they are realizing. Nobody wants their child to grow up into a criminal. Nobody wants a child to grow up Ori. But at times it is bad parenting. Sometimes they are too busy with themselves. Nowadays, a lot of people have left parenting to the TV. कि टीवी के सामने बैठाल दिया and that is it. As long as the child is well fed. No, the child has needs. The child wants emotional sustenance. The child wants nourishment. The child wants so many things. It's it's what I would say, that since Sushantji started with the prayer, most people feel that they own a child. No, nobody owns anybody. A child, if you read philosophy, is a soul which has decided to be born with you as parents, or born with us as grandparents. It has chosen to be with us, and therefore the child is here in trust. It has been given by the Almighty to you to look after. It is on its journey, you are on your own journey, and therefore there should not be this question of ownership कि कि हम जो चाहें वो करें, मेरी मर्जी. It is not that. And of course, please remember, your behavior, your interaction with the child is what is going to make or break the child, is going to make or break the country also. हम लोग तो हिंदुस्तान में एक डावुट से परेशान है, but if we are not careful, we may be incubating many more. Of course, Amod ji will answer all these difficult questions. So please keep your questions for him. I was very relieved to see him because, as I said, he's been my guru. Now I'll start on the formal part of my sort of topic. You see, most of us know, and some of us may not sort of be knowing it in so many words, that children are the most valuable natural resource of any country. There are so many countries where there is an aging population, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं. So we are very fortunate that in India we have the largest child population. And we often talk about the demographic dividend that India is going to reap. But my stint in NCPCR, somehow it still troubles me, because I feel that we are not doing enough for producing quality citizens. We need quality citizens. We don't need them in numbers. We need them in quality, not quantity. So then what has the country done? I mean, what are the structures that there are to protect children and ensure that they grow up properly? The Constitution of India, from which all our powers come out, they have many important articles. Sometimes I really wonder, who the makers of Constitution, the minds of the makers of the Constitution. I wish I had a mind like that, because they have put in so many modern ideas into the Constitution that for the next million years, it will do for us. It will be there to guide us. And then, of course, there are many articles, as I said, 21, 45, 23, 24, 47, and I've left out some chota mota ones, but the main ones are these. And any person working with children will be well advised to read these articles, because they are very fundamental to the protection of children.
Then also India has ratified and signed the UNCRC, the United Nations Convention for Child Rights. Then which has defined that all children, including children with disabilities, have four inalienable rights. These are survival, protection, development, and participation. Not survival is an important right. If we don't come into this world, what happens? A lot of women are denied these rights. Protection की right है. Then development की right है, right to education, RT Act. See how well it's connecting with all our laws. And participation. Often we forget this most important right of a child to be heard, to and this is where the conflict comes in, especially during the adolescent age, because you're not hearing your children. बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ना मानते हैं मगर उनको मेडिकल में भेज दिया जाता है, बहुत मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, उनको कहीं और भेज दिया जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको न जाने कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है कि ये सुधर जाएंगे वहाँ जाकर के। डोंट डू दिस, indulge your child. Remember, the child carries his or her own destiny. However much you may do, but the child will follow its own destiny. So don't, rear an unhappy person. So if India has to reap the benefits of this demographic dividend, then we have to protect the rights. We are talking always about ki adverse ratio hai women ka and all that, is because we have not this right of survival, we have not respected it, and that is why we have this adverse ratio. And what is happening? There'll be more crimes against women. There's commodification of women, is because औरतें कम हैं in संख्या. Then I have to mention there are about 20-21 laws. Every time I sort of try to find out how many laws there are in children, I used to come up with a different figure. 20-21 के करीब हैं. And there are some which are very, very old laws, like Orphanages Act, Guardians and Wards Act, which are still in existence, which, are being used or not used or wrongly used, I can't say. But दो बहुत important laws हैं, JJ Act 2015 and POCSO Act 2012. Now, JJ Act, to my mind, is a mother act, और POCSO Act जो है, वो उसका एक special act है. Because children need protection. As I said, it's a broad topic, from violence of any kind. But children need special protection from child sexual abuse. And especially we need to be very careful because this is happening within families. In fact, I was very surprised that recently I read this article about a huge procession and protest that had been taken out in France against incest. Now, in a developed country like France, if they're having this problem with all laws and institutions to protect them, this is happening in our society also. There is too much of child sexual violence for it to be just a one-off act. And gender neutral, POCSO Act ka hai, I would say Amod Kanji was also one of the pushers of influencers, as the word is nowadays, of this act. His Prayas was also part of this study that did this survey and found that more than 50%, 57-60% children had faced sexual sort of abuse of some type, which is a huge big number. And therefore they got this POCSO Act through, which is a very big thing. Remember, it is a gender neutral act. Today we talk of, हम लोग पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं, औरतों के बारे में बात करते हैं, मगर हम लोग भूल जाते हैं कि लड़कों को भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है बचपन में जितनी लड़कियों को होती है. फर्क केवल इतना है कि लड़कियां जो है वो अपना दुख बता सकती है. समहाउ औरतों ने, क्योंकि औरतें बॉन्ड करती हैं, अपना दुख दर्द बताती रहती हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ. बट लड़कों को कोई इनकरेज नहीं करता है ये बात कहने के लिए, और उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है जितनी लड़कियों को होती है, मगर वो कह नहीं पाते हैं.
तो उसका असर ये होता है कि ये वायलेंस जो इनके साथ हुई है वो उनके साथ रह जाती है, उनके दिल और दिमाग में असर करती है. Khan Sahib will be able to speak much more about this because he has worked much more deeply than I have. Now, family का जो जे एक्ट जो है वो पहचानता है कि फैमिली जो है वो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है किसी भी बच्चे की, विच वी ऑल नो. हम लोग एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक माँ बाप से जन्म लेते हैं, तो इट इज़ फैमिली का, इवन इफ इट इज़ अ सिंगल पेरेंट, इट इज़ अ फैमिली कॉन्सेप्ट. लेकिन इतने सारे इधर तो खासतौर पे जब से ये आई वुड से पिछले 10-15 साल में इतने चेंजेस हुए हैं एक एनवायरनमेंट में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, कि जो फैमिली के जो नॉर्म्स थे कि एक जॉइंट फैमिली होगी, एक दादा दादी होंगे, एक नाना नानी होंगे, एक वो होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, ताऊ होंगे, ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं और न्यूक्लियर फैमिली की ओर हम लोग जा रहे हैं. तो बहुत सारे हमारी संस्कृति आई वुड से, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हम लोग पर्यावरण से अपने से सीखते थे वो सब खत्म हो रही हैं. और मुझे ये लगता है कि हम लोगों का इसमें लॉस ही हो रहा है, क्योंकि जो एक पहचान होती थी, ये मेरे मामा है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये मेरे चाचा हैं, ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे बाप के समान है, मेरे बाप के बड़े भाई हैं, ये भी हमारे बाप की ही तरह, वो खत्म हो रही है. और बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ आए थे जिसमें जो शोषण कर रहा था वो यही करीब रिश्तेदार थे. इनफैक्ट जो शोषण कर रहा था बहुत केसेस में बाप ही थे, तो और करीब रिश्तेदार का क्या कहें. बट कम से कम अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि घर के अंदर एक कोई बच्चा कैद है जो शोषित हो रहा है, वो औरों से तो बात कर सकता था ना, जो ये स्थिति आजकल नहीं है. तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पे जाना पड़ता है, जो वो बात तो होती नहीं है. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हमारे यहाँ के इतने इंस्टीट्यूशंस इतने वेल डेवलप नहीं है. तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम्पल से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. आप चाहे उनको जितनी शिक्षा दे दो, लेकिन अगर आप खुद गलत काम कर रहे हो तो बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा जो वो देख रहा है. देखने से सीखता है, जिसको कहते हैं ना, एक इम्बाइब करता है एटमॉस्फेयर से. तो अगर बच्चा घर में देख रहा है कि बाप जो है वो माँ को मार रहे हैं, तो वो भी वही बिहेवियर फॉलो करेगा अपनी बहन की ओर. जब बाद में बढ़ेगा, बीबी आएगी तो उसको भी वो मारेगा, और उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हम जो है हम सुपीरियर मेल हैं और हम जो हैं हम ये कर सकते हैं. आज ही एक एक्चुअली दूसरे एक बोर्ड मीटिंग थी ये हमारी इब्तदा की, जो विमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही थी. तो वहाँ एक बड़ा यंग सा लड़का था जो आगा खान उसमें फाउंडेशन में काम कर रहा था. सो आई टोल्ड देम कि हैव टू गो फॉर दिस टॉक. तो उसने ये कहा कि अच्छा 0 to 6 years के एज के बच्चों के लिए वो काम कर रहा था. तो उसने बताया कि यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और उन लोगों ने एक किट डेवलप करी है कि हाउ टू चेंज दीज एटीट्यूड्स. तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, स्पेशली ये हम लोगों के इलाकों में, ये नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली बहुत है, साउथ में भी है बहुत. तो इसको याद रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं हमारे बिहेवियर से. हम मुंह से चाहे जितना कह दें, उपदेश दे दें, शिक्षा दे दें, महंत और संतों की बात कर ले, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो बच्चा हमारे व्यवहार से ही सीखेगा. बच्चों के विरुद्ध इसलिए सोसाइटी भी बड़ी वो हो गई है, एग्रेसिव हो गई है, और जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनके अगेंस्ट क्राइम्स भी ज़्यादा हो रहे हैं. और एनसीआरबी के फिगर्स भी हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि बच्चों के विरुद्ध क्राइम्स बहुत बढ़ गए, एकदम से बढ़ गए हैं. अब इसका क्या कारण है ये तो शोध की बात है, मगर क्राइम्स बढ़ गए हैं बच्चों के विरुद्ध. और ये नतीजा इस क्राइम का, जो वायलेंस होती है जो बच्चे फेस कर रहे हैं, वो बहुत डीपली डिस्ट्रक्टिव कहते हैं.
अंदर तक जाता है और डिस्ट्रैक्ट करता है, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। इट इज़ नॉट ओनली कि आपने बच्चे को पीटा, बच्चा रोया थोड़ी देर, उसको चोट लगी और सब खत्म। वो बात उसके अंदर तक जाएगी, वो कहीं ना कहीं जा कर के सिर पे यहाँ बैठ जाती है, और यहाँ जैसे कहते हैं कि एक छेद सा बना देती है, कोई एक प्रॉब्लम करती है। और कुछ बच्चे तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी हेल्थ, एजुकेशन, बहुत चीज़ों पे ये, स्पेशली रिपीटेड वायलेंस जब होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो ये सब चीज़ें उसको बहुत दिन तक अफेक्ट करती है। आई मीन आई थिंक मरते दम तक अफेक्ट करती है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे हमारी जैसे सफ़ेद बाल वाले लोग आते थे, रोते थे, आदमी और औरत, कि उनके साथ बचपन में ये हुआ, वो हुआ, दुर्घटना हुई, और उसके बाद बहुत परेशान होते थे कि किस तरह से अब जो 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 परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने किया है, और अक्सर तो घर वाले ही होते हैं, मर भी चुके होते हैं, लेकिन वो अपने में अपने को एक समझा नहीं पाते हैं कि हम हाउ टू टेक अवे दिस हर्ट, हम इस अपने दर्द को कैसे कम करें। और हो सकता है जैसे उम्र बढ़ती हो, दर्द और दुख जो होते हैं बढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज तो हमने अपने में भी नोटिस किया है कि मुझे बचपन की चीजें ज्यादा याद आती हैं देन अभी की रिसेंट। तो बचपन की बातें जो है वो कहीं ना कहीं से बार बार एक लाइक रिपीट स्टोरी की तरह घूमती रहती हैं। और मगर ये वायलेंस जो होती है, ये नहीं है कि बहुत छोटे बच्चों में हुई, खत्म हो गई, सब जगह वो रहता है, पूरी जिंदगी भर रहती है समा। और लड़कों में और लड़कियों में ये अलग अलग तरीके से परिलक्षित होती है, ये भी इसको एक ध्यान रखने की बात है। एक तो जैसे बच्चों के डिफरेंट स्टेजेस हैं, हमने कहा पेट के अंदर है बच्चा, बच्चा को सुनाई पड़ता है, हम लोग को अभिमन्यु की बात याद आनी चाहिए कि अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही सुन लिया था। अभी भी मैंने डिसेबिलिटीज में काम किया है, तो ऑटिज्म एक नई तरह की बीमारी है, डिसऑर्डर है जो शुरू हुई है। इसमें बच्चा बड़ा नॉर्मल होता है, ब्रिलियंट भी हो सकता है, लेकिन वो अपने माँ बाप से बोल नहीं पाता है, तो उसका इलाज भी ये लोग साउंड के थ्रू करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, माँ बाप के वॉइसेस से रिएक्ट करता है, नाना नानी के वॉइसेस से रिएक्ट करता है। तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट भी कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको हम तोड़ते हैं। तो ये जो बच्चा होता है वो ये सब चीज़ें अनुभव करता है, बच्चे की फीलिंग्स होती हैं, और साइंटिफिक रिसर्च ने भी बताया है कि बच्चे की फीलिंग्स होती हैं, बच्चा रिएक्ट भी करता है, और ये चीज़ें उसके साथ रहती हैं। तो ये सोचो, जब मदर को इतना प्रॉब्लम हो रही है, आप बार बार उसको अबॉर्शन करवा रहे हैं कि भाई हमें तो लड़का ही चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, तो मदर का जो एंग्स्ट है, एंग्स्ट दुख है, वो उसके वूम तक जाता होगा, अंदर गर्भ घर तक जाता होगा। तो जो आने वाला बच्चा है वो भी उसको महसूस करता है, बच्चों को डर भी लगता है वूम में, और अगर उसकी आवाज़ें उसको सुनाई पड़ती हैं, माँ बाप में झगड़ा है, ये है वो है, तो उसके भी दिमाग में घुसता है। फिर छोटे बचपन में तो खैर लोग समझते हैं अरे यह बहुत बालक है, इसको तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर बच्चा देखता है कि माँ बाप की लड़ाई हो रही है और बहुत ज़्यादा ये है, तो वो सुनता है, देखता है। और बहुत सारे बच्चे जो सड़क पे आ गए थे, उनसे हम लोग ने जब बात की कि भाई तुम क्यों घर छोड़ करके आए हो, तो कहते हैं हम क्या करें, हमें रोज मार पड़ती थी, वहां पे रोज कुछ ना कुछ हंगामा होता था, कभी बाप पी करके आ रहा है तो कभी माँ पीट रही है, तो कहते कम से कम यहाँ कोई हमें पीटता पाटता तो नहीं है। तो हमने कहा आप सड़क पे कैसे रहोगे, कहते हम देख लेंगे। बच्चों को एक चीज है, डर तो लगता नहीं है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा नहीं है। हमें आपको डर लगेगा घर से निकलने में, पर बच्चों को नहीं लगता है। लेकिन सड़क पे जब आते हैं तो होता क्या है भाई, पैसे तो होते नहीं है जेब में, कहीं किसी ठेले से उठा लिया कुछ खाना, कहीं कुछ हो गया, उसी में वो पकड़े जाते हैं, उसी में उनको बार बार पुलिस पकड़ती है, वो ड्रग्स पे जाते हैं।
उनकी ज़िंदगी जो एक सेफ एनवायरनमेंट था, सेफ अनसेफ एनवायरनमेंट हम कह रहे हैं, उससे वो निकले और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को हमारा घर छोड़ने की परिस्थिति आए। अगर माँ-बाप में डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो उनको एक समझदार व्यक्तियों की तरह उनको अपना ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी चाहिए। हमारे पास केसेस आते थे डाइवोर्स पेरेंट्स के, जो डाइवोर्स कर रहे थे, तो हमने पूछा तो फिर आप चाहते क्या है? कहते हैं हम बच्चा चाहते हैं। तो हमने कहा बच्चा तो आपका है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप बच्चे को अच्छी तरह रखना चाहते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, दोनों ने साथ पैदा किया है। ये क्या कि अब हम वो मेरी वो ये करती है और वो करती है, और बीबी कहती है वो करते हैं, ये करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी औरतें तो अपने बच्चों को सिखा पढ़ा के लाती थी कि ये कह दो कि हमारे बाप ने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है, शोषण किया है, यौन शोषण किया है, जो बहुत थोड़ी सी बात करने में पता ही चल जाता है कहाँ सही बात हो रही है, कहीं गलत हो रही है। हम लोग ने सब कोई ने अपनी पूरी जिंदगी प्रशासनिक तौर पे बिता दी कि सही गलत का पता लगाना ही हम लोग का काम था। मगर हमें लगा कि ये माँ देखो इस बच्चे को हासिल करने के लिए अपने ही बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रही है कि इसका बाप जो है इसको के साथ इसके यौन संबंध हो सकते हैं। आई मीन यू कांट इमेजिन, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं कि लड़के को समझाओ कि माँ के साथ यौन संबंध हो सकते हैं, और लड़की को समझाओ कि बाप के साथ यौन संबंध। ऐसा आइडिया इतना अजीब हो सकता है कि अब एज आई सेड कि हम भी ओल्ड फैशन्ड हैं, कि हमारे दिमाग से लगता था कि ये पेरेंट्स कैसे हैं जो इतनी उल्टी सीधी बात अपने बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं कि इस तरह की भी रिलेशनशिप्स हो सकती है। और ये रिलेशनशिप्स के बारे में आई मीन इट वाज हॉरिफाइंग फॉर मी। एनीवे, तो माँ बाप को ये सब चीज़ें इनको ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमने जो बात कही कि लड़के जो है, लड़कियों में वायलेंस जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग तरीके का होता है। आई मीन वायलेंस दोनों फेस कर रहे हैं। लड़के तो को वायलेंस जैसे बुलिंग हुई, पीयर प्रेशर हुआ, ये सब हुआ, मारा पीटा, फिजिकल वायलेंस ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये एडोलेसेंट एज आती है तो लड़के एक सॉर्ट ऑफ शरीर में भी ताकत आ जाती है, औरों को भी धमकाने की एक उसमें स्थिति में हो जाते हैं, तो उनको भी लोग कम धमकाते हैं। लेकिन फिर भी एक उनमें एक अग्रेशन आ जाता है, कमज़ोर को धमकाएंगे, लड़कियों को धमकाएंगे, क्योंकि ये जिसको कहते हैं लर्नड बिहेवियर है। और लर्नड बिहेवियर के कारण वो दे बिकम, उनकी पर्सनालिटी में डिस्टॉर्शंस आते हैं। लड़कियां जो होती हैं उनके जैसे हम सब औरतें हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में हम लोग पले बड़े हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस का ज़माना था इतना, और पेरेंट्स हम लोग के वेलफेयर के बारे में वरी करते थे। बट स्पेस कम हो जाती है और हम लोगों को सॉर्ट ऑफ सिखाया जाता है, एटलीस्ट यूपी में तो ये बहुत है कि भाई आँख उठा के ना देखो टाइप, बी डिम्योर, बी दिस बी दैट। तो लड़कियों के साथ एक दूसरी तरह का एक वायलेंस होता है। बट सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड मैरिज का वायलेंस, ये सब वायलेंस तो रहता ही रहता है, क्योंकि माँ बाप ये समझते हैं कि अरे लड़की बड़ी हो गई, जल्दी से इसकी शादी कर दो। एक बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही खूबसूरत लेडी हमारे ऑफिस में आई थी, वो यही बात कह रही थी। शी सेड कि पहली बार जब मैंने अपने माँ बाप को कहा कि somebody has misbehaved, कोई उसका रिश्तेदारी था, तो उन्होंने झट से उसकी शादी कर दी। तो हमने कहा ये क्या बात हुई? तो कहते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर यहाँ सेफ नहीं है तो कम से कम अपने घर जाए, अपने घर जाए माने इन लॉज के यहाँ जाए, और वहाँ सेफ रहेगी, और जो भी उसको आगे करना वरना है, जो भी रिलेशनशिप बांधना है एक आदमी से। बट सोचो एक जुर्म उसके साथ हुआ, 17-18 साल की लड़की, और अपने माँ बाप को जब वो गुहार करने गई कि मुझे आप न्याय दिलवाइए, तो उसके साथ एक दूसरा अन्याय हो गया। इसी तरह चाइल्ड मैरिज का सिलसिला है।
और चाइल्ड मैरिज के सिलसिले में लड़की की राइट्स तो जाती जाती हैं, लड़के के भी राइट्स जाते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में उसको एक बीवी बांध दी जाती है और उसके ऊपर बच्चों का भी बोझ आ जाता है, तो उसकी भी चाइल्डहुड मारी जाती है और इसकी तो मारी गई ही। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो ये इसका असर क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अब हमने आपको बता दी। सबसे पहले असर ये है कि ये जो वायलेंस का इफेक्ट होता है ये मरते दम तक रहता है बच्चों के साथ। इसको याद कर लीजिए, अडल्टहुड में भी वो कहीं जाता नहीं है, हो सकता है कामकाज के दौरान चला जाए, लेकिन जब फिर फुर्सत में आदमी में बैठता है तो उसके पास फिर वो सब यादें आती हैं। एज आई सेड कि जैसे जैसे यू ग्रो ओल्ड, बचपन की यादें और सामने आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज की तारीख में हम लोग ये कह सकते हैं कि बचपन में हुई जो ये सब प्रॉब्लम्स हुई उसी की वजह से होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, दिमाग में घूमता रहता है, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है तो कम एजुकेशन होती है, हेल्थ पे असर होता है, फिर आगे की अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट होती हैं। और वर्स पार्ट ये है कि वायलेंस जो है वो एक एक सिर्फ एक घेरा बना लेती है, एक सर्कल बना लेती है और चलती चली जाती है। हमारे साथ हुआ, हमने अपने बच्चे के साथ किया, बच्चे ने अपने बच्चे के साथ किया, तो वो टूटता नहीं है वो साइकिल। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा एक किताब हमने पढ़ी थी जिसमें चाइल्डहुड वायलेंस के को इन लोग ने आका है, बहुत सारी रिसर्च हुई है कि ये चाइल्डहुड वायलेंस का असर क्या हुआ। हम भी हैरान थे इसको देख करके कि अगर इसको फाइनेंशियल टर्म्स में हम देखें तो इसका लॉस जो होता है 2 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। सोचो हमारे यहाँ इतना फाइनेंशियल नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो हिस्सा दिमाग का जो उसमें असर हो गया वो तो उतना समझ लो क्षमता कम ही हो गई आदमी की। और कुल मिलाकर के अगर हम सबका देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने ये इसको फेस किया है इस तरह की वायलेंस, तो वो कुल मिलाकर के पूरे हिंदुस्तानियों की कितनी क्षमता कम हो गई होगी, तो उसको 2 to 5% ग्लोबल जीडीपी को ये मानते हैं। तो मोरलेस हम लोगों को ये वायलेंस को रोकने के लिए जो कुछ हो सकता है हमें करना चाहिए। लॉस तो अपनी जगह है, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन हो गया है जे एक्ट में, पॉक्सो एक्ट के लिए कड़ी से कड़ी सजा है ही है सेक्सुअल वायलेंस के लिए, लेकिन जो इमोशनल निगलेक्ट है और तरीकों से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर एक नया एक बहुत डिजिटल टेक्नोलॉजी से तो हम लोग बात ही कर रहे हैं इतनी दूर बैठे हुए, लेकिन यही टेक्नोलॉजी से लोगों को शोषण भी होता है, लोगों को परेशान भी किया जाता है और इतने सारे क्राइम्स हो भी रहे हैं। तो तरह तरह से लोग परेशान हैं, जिसका नतीजा ये है कि सोसाइटी ही परेशान है। उसका नतीजा यही है कि रास्ते में आप किसी के सामने धीरे जा रहे हैं तो उतर करके वो चार मारता ही है कहिए गोली वो मार ना दे, गोली से ना मार दे, बट रोड रेज एंड ऑल का ये कारण ये है कि पूरी सोसाइटी ही इतनी अग्रेसिव हो गई है। एंड ऑल ऑफ इट अगर सबके साथ देखें कहीं ना कहीं उसके बचपन से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात होगी। तो वायलेंस को रोकना ये हमारा कर्तव्य है। टू गिव अ चाइल्ड, ये समझ लीजिए फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय मुक्त वातावरण में बच्चे को पालना और भय मुक्त वातावरण रखना, ये एक फंडामेंटल राइट है। इसको हमें नहीं लगता है कि इट इज समथिंग दैट शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड विथ। पूरी सोसाइटी में अगर भय मुक्त वातावरण हो तो कितना देखो, एक 2 to 5% जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी। और फिर दूसरी चीज ये है कि हमें जो है
ये एक ह्यूमन राइट का मामला है, बिकॉज अगर बच्चे को हम सही तरीके से नहीं पाल रहे हैं, बच्चे को हम परेशान कर रहे हैं, बच्चे को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल निगलेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल निगलेक्ट कर रहे हैं, लड़कियों को तो खाने ही नहीं मिलता बहुत सारे परिवारों में, तो वी आर डिप्राइविंग अ चाइल्ड ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट, अ ह्यूमन राइट। तो इसको हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हम सब का एक कर्तव्य है। इट इज स्टेट का भी कर्तव्य है। स्टेट ने तो अपना बढ़िया बढ़िया एक्ट्स बना दिए हैं, हमारी पुलिस है वहाँ पे, हमारे इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एज ऐसे घरों में के अंदर हो रही हैं, तो उसका रोकने का तो कर्तव्य, उत्तरदायित्व हम सब पे है। तो इसको हमें एक प्रण कर लेना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने घर के अंदर इस वायलेंस को कंटिन्यू नहीं होने देंगे। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। Thank you for listening to me so patiently. Sushant ji, thank you for giving me this opportunity. And जितने भी please लोग सुन रहे हैं ना, वो अपने questions अमोद कांत जी से पूछें please. Thank you very much. Thank you very much. ज्ञान का भंडार आपके पास है, जवाब मैं दूंगी, ये तो बड़ी मुश्किल से। नहीं, ज्ञान का भंडार मेरे पास नहीं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है, मेरा तो काफी बहुत ही सूक्ष्म एक्सपीरियंस है, आपका बहुत व्यापक है। मैं हूँ आपके साथ। Thank you, sir. So now we have some question answered now before we request Amod Khan ji for the presidential address. We can have some questions if from the audience. ऐसा करें, आप बाद में करना पड़ेगा। हाँ, बाद में। So myself Vishwajit कह भी सकते, मुझे कोई all right, Vishwajit, please carry on. या तो सर एक्चुअली स्तुति मैम तो बहुत बार प्रयास आई हैं, बट आज उन्होंने जितनी इमोशनल वे में और जितने सेंसिटिव वे में सारी चीज़ों को हम सभी लोग के साथ साझा किया है, तो ये मुझे लगता है कि मेरे सभी साथी इसमें हैं इस वक्त, और सभी ने इन सारी बारीकियों को बहुत ही संजीदगी से सुना और बहुत बारीकियों को समझा भी। तो मैम, हम प्रयास की तरफ से और मैं अपने बच्चों की तरफ से और साथियों की तरफ से आपको असीम धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। Mr. Gochal from Prayas. Yes sir. Yes sir. Okay, thank you. Anybody else, please? Sunil ji. Sunil ji, can I? And Dev Sahab, I think let us hear Mr. Kant, because yes, there is better. You know, it becomes one seamless thing. ठीक है, अमोद जी, can we request you to kindly deliver your presidential address? Yes, in fact, to start with, in the whole. Thank you, Sushant ji, and thank you, Stuti. For of course, I think it's a remarkable discussion going on. This is the right way of having discussions, so lucid and so simple. And so, as you said, Stuti, it's very seamless. Seamless not because I'm going to join after you, but seamless in your thought, seamless through your experience. It has been very, very seamless the way you presented it. So it's remarkable. And Sushant ji, I wish to compliment you on behalf of Prayas, on behalf of all the listeners here, and on behalf of numerous people who have been benefiting out of your weekly programs. Now, every week I can see that you're conducting some kind of seminar, webinar now, and discussions are going on. So with whatever limitations you have and you are able to do during these COVID times, I think you are taking the best advantage of it. And of course, we have been joining with you. Well, I think decidedly Prayas Institute of Juvenile Justice and the entire organization of Prayas with all our co-workers shall always remain available with you. And it would be a great pleasure in all times to come to continue and work with you. स्तुति ने जो आज सारी बातें वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक तो बहुत सिंपल और सारे एक्सपीरियंस का एक सारांश आपने पेश किया,
और जाहिर है कि आपका तजुर्बा हमसे कम नहीं है, हमसे शायद ज़्यादा ही होगा कुछ मामले में। और IAS ऑफिसर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग स्थितियों में आपने देखा है, तमाम समाज को देखा, सरकार को देखा, समस्याओं को देखा, लोगों को देखा जो जुड़े हुए हैं समस्याओं से, बच्चों को देखा, महिलाओं को देखा, ये सारी चीज़ देखी। और डिसेबिलिटी हैज़ बीन योर स्पेशल एरिया, आई नो, और आपने डिसेबिलिटी पे काम भी किया है बहुत ज़्यादा। और मुझे याद भी है कि जब ज्वाइन किया आपने चेयरपर्सन नेशनल NCPCR के तौर पे, तो मैं आपसे मिला और आपने, सही बात है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस दिया उस समय, और आपने समझा और महसूस किया कि शायद चूँकि बच्चों पे हम लोगों ने काम किया है तो हमारा कुछ तजुर्बा होगा, उस तजुर्बे को हम कैसे शामिल करें इस प्रोग्राम में और किस ढंग से NCPCR का इस्तेमाल करें। एंड लेट मी टेल यू all your friends present here, and Sushantji, including yourself, and anybody who's going to listen to it, that I have seen the National Commission for Child Rights functioning right from the beginning until now. I have very closely known almost all chairpersons. I have very closely interacted with most of the members. I know very well what kind of issues, what kind of problems, what kind of solutions, and what kind of legal matters and what kind of other than legal matters the NCPCR has to deal with. Let me tell you, everyone here, and Stuti, let me compliment you, that decidedly nobody has been able to do. None of the occupants of this office have been able to give that multi-dimensional treatment to various issues. मैं पहले भी कह रहा था, मैं इस बात को कहता था कि भाई ऐसा है कि कोई भी जो कमीशन है, उस कमीशन के अपने लीगल राइट्स होते हैं और अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करना ही बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि मैं चेयरमैन रह चुका हूँ दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स का, तो मुझे इस बात का अंदाज है, जब मैं चेयरमैन बनाया गया DCPCR का, तो मैं पहले सच पूछे तो मैं गया NCPCR में यह समझने के लिए कि NCPCR कर क्या रही है। फिर मैंने बात किया जो नेशनल कमीशन वुमेन के चेयरपर्सन से बात किया, सभी हमारे दोस्त थे, इत्तेफाक से लोगों से मेरी मुलाकात बहुत लंबे समय तक हर जगह होती रही, एंड ऑल ऑफ हैव बीन वेरी काइंड टू मी। Then finally I decided to go to NHRC because NHRC I had dealt with more closely than other commissions as a police officer. Must be hundreds of matters which I have dealt with NHRC. NHRC में सिर्फ इसलिए नहीं कि NHRC का चेयरपर्सन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता था और NHRC को एक लीगल अथॉरिटी के अलावा एक ऑरा है NHRC का अलग, और जिसकी वजह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, बेहतर कर सकता है एक ह्यूमन राइट्स के तमाम मसले पे। ये बात थी उनके साथ। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा तो मुझे लगा कि शायद NCPCR और DCPCR भी उस ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। कानून करीब करीब एक ही बनता है। आई थिंक आप एग्री कीजिएगा कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट एंड CPCR एक्ट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। Anyway, there is a possibility and you can do a lot, and you have proved that you have done a lot for child rights also. Now, on the issue of child rights and the issue of violence against children, over the years, people like me in the sense that even someone like you, Stuti, and someone like you, Sushantji, we form our own worldviews. We ultimately decide to create our own ways, the way we look at things. 34 years when I worked as a police officer, prior to working as a police officer when I worked in some other capacities. And now exactly 33rd year is going while I am working with Prayas in voluntary sector. And past nearly 3 years, I had the unique opportunity of working with Niti Aayog. And Niti Aayog is an opportunity because it gives a very kind of macro view of all the issues concerning all types of people. तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो इस अपॉर्चुनिटी से मेरे भी अपने व्यूज बने। वायलेंस की बात जहाँ तक है, क्योंकि आज ये इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के संदर्भ में वायलेंस क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करते हैं। सुशांत जी ने मुझे कहा था इस मीटिंग के पहले कि आप इसको थोड़ा बताने की कोशिश करें कि वायलेंस होती क्या है। ये एक्चुअली हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन WHO से बोरो किया था। जिस समय 2005-07 में नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज की पहल की गई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब्यूज को डिफाइन किया एक खास ढंग से,
और उस एब्यूज में, उसके पहले हम एब्यूज को सोचते थे कि शायद सेक्सुअल एब्यूज एक खास ढंग की एब्यूज है या कुछ लिमिटेड परिभाषाएं थी एब्यूज की। लेकिन उस समय हम लोगों ने, जब यूनाइटेड नेशंस की ये स्टडी जो थी 2005 में, जिसमें ये बात की जा रही थी कि ग्लोबल लेवल पे वायलेंस कितने किस्म के होते हैं, कितने ढंग के वायलेंस होते हैं जो बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ता है, बच्चों के ऊपर होते हैं। और सच पूछे तो अभी जो तकरीब की स्थिति में, उसमें करीब करीब हर ढंग के वायलेंस का आपने एग्जाम्पल्स दिया, अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग स्थितियों में आपने बताया वायलेंस का। तो हम लोगों ने उसको एक मुकम्मल स्टडी के तौर पर, चूंकि हम लोगों को करना था उस समय, तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस वायलेंस की स्टडी कर रही है, तो भारतवर्ष में उस वायलेंस की स्टडी का जो नाम हम देंगे, वो नाम स्टडी ऑन वायलेंस नहीं करके हम लोगों ने इसको नाम दिया था नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज। यानी एक ढंग से देखा जाए तो अब्यूज को हम लोगों ने वायलेंस से जोड़ा। और वायलेंस पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये होता है कि किसी की पिटाई हो गई, किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट मिल गया, या किसी को आपने प्रताड़ना कर दी तो वही वायलेंस होता है। इसका बहुत एक लार्ज, एक वाइड इसका फेस होता है, इसका चेहरा होता है वायलेंस का, जिसमें कि मेंटल वायलेंस भी है, फिजिकल वायलेंस भी है, तमाम चीज़ें हैं। इसलिए जब ये स्टडी हम लोगों ने किया, जिसको वायलेंस से हम जोड़ सकते हैं सीधे सीधे, तो हम लोगों ने एक तो फिजिकल वायलेंस की बात की। फिजिकल वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे की पिटाई हो गई या बच्चे को फिजिकली आपने टॉर्चर कर दिया। फिजिकल लेवल पे किसी भी ढंग की चीज़ होती है। अगर बच्चे को भूखा भी आपने रखा, बच्चे को आप कहीं खड़ा भी कर दिया आपने, बच्चे के साथ कोई भी ऐसी चीज़ की जो फिजिकली उसको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करता है, उसके नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट को रोकता है या कहीं ना कहीं उस पर असर डालता है, नेगेटिव असर डालता है, तमाम वो चीज़ें फिजिकल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस तो और भी ज़्यादा वाइड, जो दूसरे ढंग के वायलेंस की हम लोगों ने बात की थी, इमोशनल वायलेंस। अब इमोशंस एक मानसिकता है, एक ऐसी स्थिति है दिमाग की जो लगातार चलती है। स्तुति कक्कड़ ने बताया, और ये एकदम सही बात है, कि हर बच्चे के मन में जो बचपन की तमाम बातें हैं उसकी बड़ी गहरी छाप होती है। वो छाप को हटा नहीं पाता है, कोई लड़का कोई लड़की उस छाप को नहीं हटा पाता है। वो इतनी मजबूत छाप होती है, और वो एक इमोशनल एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है उसके माइंड पे, उसके पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस पे कहीं ना कहीं वो जुड़ा होता है। और यही जब हम लोगों ने देखा कि भाई किस ढंग से इमोशनल वायलेंस जो है, या किस ढंग से इमोशनल अब्यूज बच्चे को तंग करता है, बच्चे को परेशान करता है और आगे बढ़ता है, तो हम लोगों ने इसीलिए जो नेशनल स्टडी हम लोगों ने किया, तो उसमें सिर्फ हम लोगों ने बच्चों पे स्टडी नहीं किया। कोई 12,400 के आसपास बच्चे थे जिन पे हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन इसके अलावा कोई 2,500 के आसपास हम लोगों ने उन लोगों को लिया जो यंग एडल्ट थे, यानी अभी हाल में 18 साल से बड़े हुए हैं, 22-23 साल तक के बच्चे नहीं, यानी युवा, यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट हो सकते हैं, यंग पीपल हो सकते हैं, जो अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, जो अलग से कहीं काम कर रहे हैं या कहीं जॉब में चले गए या कहीं और जगहों पे हैं, लेकिन उनके मन में वो छाप पड़ी हुई है, वो इमोशनल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज को अब तक महसूस करते हैं। इसके अलावा जो वो तमाम एजेंसीज हैं, जिन तमाम एजेंसीज को हमने शामिल किया अपने स्टडी के अंदर, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हों, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हों, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हों, या इसके अलावा आपको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो संस्थाओं को रन कर रहे हैं या नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोग्राम्स रन करते हैं वो हों, या इसके अलावा टीचर्स हों जो स्कूल से पढ़ाते हैं, या प्रिंसिपल्स हों, या केयर टेकर्स हों, या संस्थाएं हों, तमाम संस्थाएं जो बच्चों को डील करती हैं, या सड़क के बच्चे हैं उनके साथ जो संस्थाएं काम करती हैं, या सड़क के बच्चे खुद, उनके जीवन पे क्या हो रहा है। तो करीब करीब सैकड़ों किस्म के ऐसे अलग अलग यूनिट्स थे जिनको हम लोगों ने इस स्टडी में शामिल किया और जानने की कोशिश की कि ये तमाम लोग जो या तो बच्चे के तौर पे या यंग एडल्ट के तौर पे या एक फंक्शनरी के तौर पे किस ढंग से जुड़ते हैं समस्याओं से, और क्या असर वो समझते हैं कि वायलेंस का क्या असर होता है, अब्यूज का क्या असर होता है। ये दूसरा इमोशनल अब्यूज की बात हम लोगों ने की। तीसरा जो बहुत पावरफुल और बहुत डिफिकल्ट और सबसे खतरनाक अब्यूज था, जिसकी चर्चा काफ़ी अभी की गई है, वो अब्यूज सेक्सुअल अब्यूज था। और आप समझ रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज यानी यौन विषय से संबंधित जो तमाम अब्यूजेस थे या घटनाएं होती हैं, उसका भी स्वरूप बड़ा अजीब होता है। एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि जो पूरा का पूरा एक यौन संबंध होता है या सेक्सुअल कॉन्शियसनेस, मैं कहता हूँ, ये सेक्सुअल कॉन्शियसनेस किसी स्कूल में हर कोशिश के बावजूद नहीं पाई जा सकती है, हर ट्रेनिंग के बावजूद, हर एजुकेशन के बावजूद
इसको नहीं बताया जा सकता है इसके पूरे स्वरूप के साथ, ये डेवलप करता ही करता है, हर बच्चे में, हर व्यक्ति में डेवलप करता है, अगर वो नॉर्मल है अपने लाइफ में तो। और आपको जैसा पता है कि आजकल एक नई चीज़ जो है, मतलब ट्रांसजेंडर सिचुएशंस क्रिएट हो गए, और वो एक जो तीसरा एक अलग सेक्स है या पूरा सेक्सुअल जेंडर का एक पूरी कैटेगरी आ गई है, उसकी समस्याएं भी हमारे सामने आ रही हैं। तो ये जो सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल कॉन्शियसनेस, ये तमाम चीज़ों से संबंधित जो समस्याएं थी, इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो हम लोगों ने स्टडी किया, उसका सबसे एक समझिए तो नया स्वरूप खुल के सामने आया। 2007 के पहले हम लोग ये सोचते थे, भारतवर्ष के अलावा पूरी दुनिया में स्टडी को किया जा रहा था, अरे जनरली देयर वाज अ थिंकिंग दैट इंडिया इज अ कंट्री where sexual violence is much less. We thought that India is far less abusive. We thought that Indian culture, Indian society is better. But then after this study, we learned and we came to a conclusion that India was a rogue country. भारतवर्ष में सेक्सुअल वायलेंस का या सेक्सुअल अब्यूज का जो एक स्वरूप मिला 2007 के स्टडी के बाद, दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था। और जब ये पता लगा कि जो हम लोगों ने 18,000 लोगों पे, जिनमें 12,500 बच्चे थे, उन पे स्टडी किया, उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश किया कि किस ढंग की समस्याएं इनके साथ है। आश्चर्य की बात यह है कि वो बच्चे जो समृद्ध परिवारों के थे, वो बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवारों के थे, वो बच्चे जो आम गरीब परिवारों के थे, वो बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो ऑर्डिनरी स्कूल्स में, जिला स्कूल में या म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो सड़क पे, इन तमाम अलग अलग बच्चों के साथ करीब करीब अलग ढंग से एक सेक्सुअल वायलेंस को देखा गया, सेक्सुअल अब्यूज को देखा गया। और यही कारण था स्तुति कि जब हम लोगों ने इस बात को सामने लाया, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और प्रयास ने, जिसने स्टडी पूरी तरह से किया था, और जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे, हमने इसको जब सामने लाया कि हर दूसरे बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है। और जो स्तुति चक्र ने बताया कि मेल वायलेंस, मेल चाइल्ड में उतना ही सेक्सुअल वायलेंस होता है जितना फीमेल चाइल्ड में, बल्कि कहीं कहीं ज़्यादा होता है। तो ये जो एक स्थिति सामने आई, और अलग अलग फॉर्म्स के वायलेंस थे। इंडियन पिनल कोड के अंदर जो है वो, आप इस बात को समझें कि इंडियन पिनल कोड में लड़कियों के लिए 2 ही 3 ढंग के अपराध पहले होते थे। एक रेप, सिंपल रेप होता था, जो आप समझते हैं कि उसकी परिभाषा पहले क्या थी, मैं परिभाषित फिर नहीं करना चाहता हूँ। आउटरेजिंग मॉडेस्टी हुआ करती थी, या कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो सेक्सुअली ओवर्ट एक्ट, उस ढंग की चीज़ है जो कि बच्चों को दिखाया जा रहा है, बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है। पोर्नोग्राफी एक नई चीज़ पैदा हुई जो कि और बढ़ के इसका नया नया स्वरूप सामने आ रहा है। लेकिन लिमिटेड किस्म के अपराध थे, लिमिटेड किस्म की बातों को हम सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल क्राइम मानते थे। जब ये स्टडी की गई, नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज, और रिजल्ट सामने आया, तो आपको पता है कि, और तभी स्तुति चक्र ने इस बात का इशारा किया कि हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एक्ट, पॉक्सो की पैदाइश नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज से। वहीं ये डिसाइड किया गया कि बच्चों के लिए हम लोगों को सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता है। एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया कानून बना, और जो आपने सही बताया कि पॉक्सो जो है जेंडर न्यूट्रल लॉ है। बल्कि पॉक्सो के बाद जब ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बन रहा था निर्भया केस के बाद, तो हम लोगों ने ये अपील की जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने, मैं खुद अपीयर हुआ, और लोग अपीयर हुए कि आप सेक्सुअल सारे क्राइम को आप जेंडर न्यूट्रल कर दें, उससे बहुत आसानी होगी, चाहे वो मेल के साथ हो चाहे फीमेल के साथ हो, सेक्सुअल क्राइम है। लेकिन खैर वर्मा कमेटी ने इस बात को माना, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना, जिसकी वजह से आगे बहुत सारी समस्याएं हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि अननेचुरल ऑफेंसेस जो था बच्चों के साथ, जो 377 आईपीसी, जिसकी बहुत लंबी चर्चा होती रही है ट्रांसजेंडर क्राइम्स के बारे में, 377 आईपीसी को रीड डाउन किया गया एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए रीड डाउन नहीं किया गया, और 377 अभी भी कंटिन्यू करता है बच्चों के लिए। लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा कानून पॉक्सो के नाम पे आ गया। बहुत कम कानून ऐसे हैं इस देश में जिसका इतनी तेजी से उतने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया है। अगर आप उठा के देखें, जब ये कानून बना 2012 में और आज 2021, 8 साल के बाद, शुरू में इसका इस्तेमाल कम हो रहा था, a few hundred केस, शुरुआती तौर पर तो 20-25 केस थे, लेकिन अब हजारों में केस आ रहे, हजार में केस आ रहे। 3.5 लाख केस मैं समझता हूँ कभी पेंडिंग है पूरे देश।
और आई एम वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी हाल में बचपन बचाओ ने और लोगों ने PIA फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम पॉक्सो के केसेस का जायजा लिया बड़ी गहराई से। हाईएस्ट कोर्ट ने पॉक्सो के एक एक कैटेगरी के केसेस को स्टडी किया। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे मौका मिला उसमें पार्टिसिपेट करने का। मैं भी था एक छोटे से टीम में और हम लोगों ने स्टडी किया। और पूरे कंट्री में जहां जहां पे 100 से अधिक पॉक्सो के केस हो रहे हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, बन गए मेरे ख्याल से, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था। तो बहुत सारी बातें हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान रास्ते में हम हैं, लेकिन समस्याएं चलती रहती। आपको मालूम है, यू नो इट सो वेल, कि भाई इसके बावजूद कि इतना पावरफुल लॉ है, इसका इतना इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ क्राइम्स के अलावा नंबर ऑफ अनरिपोर्टेड केसेस लाखों होते हैं। और समस्या वही है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स यानी करीब 75% जो अपराध होते हैं, सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, वो अधिकतर परिवार के अंदर, या तो परिवार में होता है या नजदीक संबंधियों के बीच होता है या नजदीक ऐसे लोग जो केयर टेकर्स होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं उस बच्चे के परिवार के लोग। बहुत बार बाप माँ खुद, जो स्तुति ने उसकी चर्चा की, मामा चचा ये वो तमाम चीज़ें बहुत कॉमन है। स्कूल के टीचर्स बहुत कॉमन है। अगर बच्चा इंस्टीट्यूशन रहता है, इंस्टीट्यूशन के केयर टेकर्स बहुत कॉमन है। तो ये तमाम चीज़ें मतलब चल रही हैं। ये तो एक बहुत ही गंदे ढंग के समाज की परिभाषा में ये तमाम समस्याएं आती हैं और हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग विद दिस एंड लॉ अलोन कैन नॉट चेंज द केस। तो ये सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं और चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल स्टडी में भी बात थी और आम जीवन में भी बात थी। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में चाइल्ड वर्कर्स, चाइल्ड लेबर है, वर्किंग चिल्ड्रन। अब सवाल ये है कि वर्किंग चिल्ड्रन के साथ किस ढंग का वायलेंस हो रहा है। इकोनॉमिक वायलेंस तो है ही, और साथ में इकोनॉमिक वायलेंस के, फाइनेंशियल वायलेंस के साथ जो फिजिकल वायलेंस हो रहा है, इमोशनल वायलेंस हो रहा है, भयानक इंजस्टिस हो रही है उन बच्चों के साथ जो लोग स्कूल नहीं जा सकते। क्योंकि स्कूल एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। देखिए, सिर्फ शिक्षा जो है वो सिर्फ आदमी के दिमाग को बेहतर नहीं करता है, सिर्फ आदमी को वो नॉलेज नहीं देता है, बल्कि उस व्यक्ति को, जो भी छोटा बच्चा है, उसके पूरे ग्रोथ प्रोसेस में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव कवर है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक नया आयाम देता है उसके जीवन में, उसके पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो शिक्षा का ये एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट है, उसका एक इम्पैक्ट होता है जो माइंड पर होता है। और ये तमाम बच्चे जो आपके चाइल्ड वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन। मुझे अचानक याद आ गया, अभी आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया जा रहा है 2020 का। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट स्टेज में सारी बात चल रही थी, तो कुछ लोगों के साथ मिलके, जो हमारे निशंक साहब हैं, मंत्री महोदय, HRD मंत्री थे, अब तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए वो, तो उनके पास मैं गया और मैंने उनको बताया, मैंने कहने की कोशिश की कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनको सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता है, ये करीब 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, देश की तमाम संस्थाएं, अधिकतर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस बात को मानती थी उसके पहले भी कि भारतवर्ष में करीब 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि उस कैटेगरी में फॉल करती हैं जिनके पारिवारिक एक ढंग का संरक्षण नहीं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं हैं। वो जो 4 अधिकारों की चर्चा सुष्टि जी कर रही थी, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू इन ये तमाम अधिकार उन बच्चों के लिए एक सपना है, क्योंकि वो बच्चे ऐसी स्थिति में हैं, चाइल्ड लेबर हो सकते हैं, होमलेस चिल्ड्रन हो सकते हैं, डिजास्टर क्राइसिस अफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं, वो तमाम बच्चे जो सड़क के बच्चे हैं, कामकाजी बच्चे हैं, ये तमाम बच्चे, इनकी संख्या देश में 3.5 करोड़ के आसपास है। जब हमने ये बात उनको बताया और कहा कि आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन बच्चों के लिए आपको कुछ करना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप स्कूल को स्वर्ग भी बना दे तो इन बच्चों का कोई लाभ नहीं है, बिकॉज दे कांट रीच द स्कूल एट ऑल। There is a strong need that you pick up and identify these children and take them to school, which we call mainstreaming of education, these kind of children.
निशंक साहब ने इसको सीरियसली लिया। और उस समय ऐसे बच्चों की संख्या 2014-15 में बताई गई थी कि 6.5 करोड़ के आसपास जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि देश में खाका रहता है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं। और हम लोगों ने जो उनको ये बात कही, कहीं ना कहीं पे पॉलिसी में ये शामिल किया गया। और उसके लिए हमारा ये कहना था कि देश के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतवर्ष में 32 लाख ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी चर्चा आप जानते हैं कि 32 लाख ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी, और माना जाता है कितने ऑर्गेनाइजेशन। दर्पण पोर्टल पे नीति आयोग के करीब करीब 1 लाख के आसपास ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये तमाम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस किस ढंग से एजुकेशन के लिए इन बच्चों के एजुकेशन में मदद कर सकते हैं, ये सवाल हम लोगों ने उठाया है और कहा है कि अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को आप एसोसिएट नहीं करेंगे तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल गलियों में जाके, गरीब गरीब जगहों पे जाकर के, किसी गांव में जाकर के बच्चों को ला करके स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। इस बात को माना गया। अभी फिर हम लोग इस बात की पहल कर रहे हैं और शायद हम लोग को एक नई स्कीम की ओर ले करके जाएंगे। तो मेरा ये पॉइंट कहना है इस बात पे कि एजुकेशन नहीं मिलना, जो कि राइट टू डेवलपमेंट का सबसे मजबूत और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन, वो नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ा डेप्रिवेशन, एक ऐसी चीज है जो बच्चों को मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो एक वायलेंस है। A child not going to school, a child deprived of education is actually suffering a very unseen kind of violence in my opinion. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही कारण है कि हम लोगों ने नेशनल स्टडी ऑफ चाइल्ड अब्यूज में 2 और कैटेगरीज की बात की थी। एक कैटेगरी था वो गर्ल चाइल्ड। आपको पता है कि और बच्चे जो हैं 20% या 25% बच्चे जो हैं स्कूल से निकल जाते हैं शुरू में। गर्ल चाइल्ड जो स्कूल से निकल जाती हैं, क्लास 8 तक पहुँचते पहुँचते 40% गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल। 40% लड़कियों का स्कूल से निकल जाना या स्कूल नहीं पहुँचना कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अधिकारों का हनन है, ये मैं इसके बारे में क्या कहूँ आपको, ये स्पष्ट है। तो एक गर्ल चाइल्ड अब्यूज हम मानते हैं, गर्ल चाइल्ड का अब्यूज बहुत ढंग से होता है। मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, स्तुति जी ने बहुत अच्छे से पेश किया था और बताया था कि लड़कियों को कैसे कैसे वायलेंस की शिकार होती हैं, किस ढंग से उनको अब्यूज किया जाता है। लेकिन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, चाइल्ड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, और जो फिजिकल क्राइम्स होते हैं या इस ढंग के इमोशनल क्राइम्स होते हैं लड़कियों के संदर्भ में, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट की उनको जरूरत होती है। नेग्लेक्ट एक चीज है, चाइल्ड नेग्लेक्ट, ये कहीं भी हो सकता है, ये समृद्ध परिवार में भी हो सकता है, बहुत अच्छी स्थितियों में भी हो सकता है, किसी संस्था में भी हो सकता है, ये बड़ा पर्सनलाइज्ड अफेयर, और बच्चे नेग्लेक्टेड होते हैं। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, यानी फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, गर्ल चाइल्ड अब्यूज, नेग्लेक्ट, इकोनॉमिक अब्यूज, ये तमाम अलग अलग किस्म के अब्यूज हैं जो इन माय ओपिनियन दे हैपन टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस। दे आर टाइप्स ऑफ वायलेंस, दे आर नॉट ओनली टाइप्स ऑफ अब्यूज, दे आर टाइप्स ऑफ वायलेंस, और हमको इस बात को समझना पड़ेगा। एक 2 और इम्पोर्टेंट बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्तुति कक्कड़ ने एनसीपीसीआर की में चेयरपर्सन की कैपेसिटी में उन्होंने ये महसूस किया होगा, मैंने भी डीसीपीसीआर के चेयरपर्सन की कैपेसिटी में महसूस किया कि बच्चों के ये पूरे अधिकार का जो एक फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क अलग है। ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जैसा आपने खुद भी कहा कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, उसके पहले 2000 का था, और अभी तुरंत उसमें काफ़ी संशोधन आ गया है 10 दिन पहले। हम समझते हैं कि सबों को जानना चाहिए, मैंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी है। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्चुअली बच्चों का बुनियादी कानून। 1960 में ये चिल्ड्रंस एक्ट था, 1986 में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, 2000 में जुवेनाइल जस्टिस विदिन ब्रैकेट केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट ये बना, और ये सारे स्थितियों को कवर। स्थिति आप काउंट करने की कोशिश कर रही थी कि कितने लॉ हैं जो बच्चों से कनेक्टेड। आपको पता है 14 भाई कह रहा था कि लॉट ऑफ लॉज व्हिच कनेक्टेड, आई मीन देयर आर कनेक्टेड टू चिल्ड्रन, देयर आर so many laws, probably there are 14 of them, but anyway let us not count them, that's not very important, because more important part is that this basic law for children, the Juvenile Justice and Protection Act,
ये धीरे धीरे इस कानून का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया है, और अब और भी किस्म के जितने कानून हैं वो कहीं ना कहीं से इस कानून के दायरे में आ जाते हैं। एक फ्रेमवर्क देता है ये, वो फ्रेमवर्क है जिसमें एक तो बेसिक डेफिनेशन है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इस डेफिनेशन को हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, अभी फिर इसको बढ़ाया गया है। तो करीब करीब बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे जो कहीं ना कहीं इनजस्टिस के शिकार होते हैं, जिन बच्चों को विक्टिम के तौर पर हम देख सकते हैं, अपराधों के विक्टिम हो सकते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन हो सकते हैं, जुवेनाइल्स पे हो सकते हैं, वो भी उस दायरे में आ जाते हैं। तो उन तमाम बच्चों को हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में लाते हैं। चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, children who happen to be witnesses, and even juveniles who commit crimes, for example, because even those juveniles who commit crime, majority of them happen to be children in need of care and protection. हम लोग की जितनी स्टडीज है जुवेनाइल्स के बारे में वो इंडिकेट करती है कि करीब करीब 80% क्रिमिनल चिल्ड्रन, बच्चे जो क्राइम कमिट करते हैं, they happen to be either illiterate or homeless, they come from extremely deprived background. So they happen to be simultaneously children who commit crime and children who remain in need of care and protection. I mean, this is what the situation is. So basically, all these categories of children are to be dealt with under the basic law of Juvenile Justice Act. अभी हाल में एक थोड़ा परिवर्तन आया है 2016 में चाइल्ड लेबर लॉ में, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक परिवर्तन आया। इस परिवर्तन में ये हुआ कि पहले 14 साल तक ही चाइल्ड लेबर को हम कवर करते थे, और 14 साल तक इसलिए कि 14 साल तक राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट फंडामेंटल राइट देता है बच्चों को, लेकिन इस कानून ने एडोलेसेंट एक नए टर्म को ऐड करके 18 साल तक, जबकि हमारे लिए 18 साल ही बच्चों की उम्र है। तो ये इस डिस्टिंक्शन को तो हम लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। वी थॉट इट वाज अ रॉन्ग डिस्टिंक्शन टू डिवाइड चाइल्डहुड इन टू पार्ट्स। ऑन द वन हैंड अप टू 14 you call a person a child, from 14 to 18 you call that person adolescent, and try to create distinction. Anyway, but we are happy about one thing, that at least the child labor who happen to be doing hazardous kind of work, who should not be doing certain kind of work which harms their health, which harms their development, and which causes any kind of mental and physical violence on them, those kind of children beyond 14 years up to 18 years could be treated as adolescent, and there is a law to protect them. That new part of law is something which is important. Although under Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, we already have various types of situations where crimes are committed against children, including those children who get into certain kind of child labor situation, adolescent labor situation, which causes harm to them. So these are all connected activities. I am talking about the laws, partly about the laws, because I would like to talk about the rights also. The rights of children, for example, in my opinion, they happen to be deeply connected to the needs of children. And that is why, when we have been running this organization, प्रयास के लोगों और उसके साथ साथ हम लोगों ने कहा है, खत्म से कहा है, the needs and the rights of children are synonymous. Right to protection, right to life, right to parenthood, right to education, right to health, all types of rights which come naturally to the child, whether you guarantee them or not, they happen to be the rights of children. And they are the same kind of rights which are also, you can find in the United Nations Convention on Rights of Child. 54 articles are there. If you read carefully those 54 articles, you will find that these are the natural rights of children. I mean, they need not be called fundamental rights, but they become very, very important. तो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा कहना है कि बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी बच्चे के बुनियादी अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो एक ढंग से बच्चों के खिलाफ वायलेंस है, वो एक ढंग से बच्चों के खिलाफ भयानक इंजस्टिस है। और इस इंजस्टिस को आप एक दूसरे सिस्टम में डाल के सोचने की कोशिश करें। हमारी दिक्कत ये है कि हम लोगों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना खतरनाक है। मैं खतरनाक ही कहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हाल में मैंने एक किताब लिखी, which I talked about my police work. I am talking about police work, although I have discussed in great detail issues I am discussing here. I talked about Khaki Industry Storm. It's a small kind of memoir, the first part of the memoir.
where I've attempted to say that how India's criminal justice system is collapsing. It has collapsed long back because actually it's the product of a different kind of situation. Whereas juvenile justice system that we have created is far, far better, is far superior and far different. तो हम लोगों को जब बच्चों की हम बात करते हैं, जो बच्चे उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, जो बच्चे जुवेनाइल के तौर पे हमारे सामने होते हैं, जो बच्चे अपने जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इन तमाम बच्चों के लिए या उनके साथ वायलेंस हो रहा है या उनका अब्यूज हो रहा है या विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स हैं, इन तमाम बच्चों के लिए जो दूसरे सिस्टम की जरूरत होती है, उस सिस्टम में बच्चों के अधिकार वही हैं जो बच्चों के खिलाफ वायलेंस होते हैं, उनका हनन होता है अधिकारों का, उनकी बात है. So their needs and rights are synonymous. That's the point I am trying to make. So in nutshell, in conclusion, I'd like to say that we have to learn to treat the child differently. We have to understand that this age of growth, the childhood which goes up to at least 18 years, although nothing so dramatic happens in the night of 18th year, but then yes, 18 years because the child doesn't have right to vote, he doesn't have right to marry. I mean, a girl child also can't marry before 18. The child cannot drive a vehicle. The child cannot even engage a lawyer because the right to do some legal action is not given to the child before 18 years of age. So 18 years is the dividing line where the child is actually not in a position to do a lot of things which adults would do. So obviously, a different kind of protection has to be given to the child. A different kind of treatment has to be given to a child up to 18 years of age. और ये इस तमाम सिचुएशन में जब हम वायलेंस और अब्यूज की बात करते हैं, इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों के लिए जो पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है उसको हम फॉलो करें, और वो बहुत बहुत जरूरी है. अभी कल परसों मैंने एक चिट्ठी लिखी है स्मृति ईरानी जी को. उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन को, पता नहीं स्तुति जी, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा इसके बारे में, अगर मौका मिले तो आप सपोर्ट कीजिए. Perhaps you do not know that the Madam Minister, somebody made a point to her and she has practically decided to transfer the Child Helpline 1098 to Home Ministry. Have you heard about it, Stuti ji? I have no idea. आपने शायद सुना होगा इसके बारे में. ये एक नई चीज़ है जो कि चल रही है. तो ये इसका लेकिन बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे ऑपरेट करता है 600 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस ढंग से ये बच्चों को डील करता है, जिस ढंग से इन तमाम समस्याओं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसको समझता है चाइल्ड हेल्पलाइन. या चाइल्ड हेल्पलाइन में कौन है? वही बच्चे हैं जो पहले खुद सफ़र कर चुके हैं, उनको ही मोस्टली हमने रखा है चाइल्ड हेल्पलाइन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड हेल्पलाइन का बहुत डिफरेंट है. वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, गवर्नमेंट के तमाम बॉडीज को हेल्प करते हैं. ए डिसीजन टू ट्रांसफर चाइल्ड हेल्पलाइन फ्रॉम, लेट्स से, the juvenile justice system or the Ministry of Women and Child Development, or from amongst those who support this system, to, let's say, Home Ministry and to police, my department, my old department, I'm opposing it. I'm saying that child helpline should remain with Ministry of Women and Child Development. Form and shape should not change. तो sensitivity की बात कह रहा हूँ मैं. पुलिस या होम मिनिस्ट्री किसी चीज़ को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर देख सकती है, लेकिन इसी चीज़ को अगर एक कंपैशन के साथ देखने की जरूरत हो तो वो इस मिनिस्ट्री में आ सकती है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ लाइट ऑफ हो चुका है मेरे कमरे में. कैन यू सी मी नाउ? एम आई विजिबल? You are not visible. I'm not visible. Light off हुआ है. Anyway, I'm we not can visible. hear you. Yeah, just hold. We can hear your voice. Is it okay now? No, fortunately it's going on. Okay. So this is all I wanted to speak to you. काफी देर हो चुकी है और आपने कहा भी था कि 5:15 तक प्रोग्राम खत्म होगा, लेकिन हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं. We can discuss further. वैसे मैं जानता हूँ कि स्तुति जी can answer all the questions better than me. Okay, but I am prepared. Okay. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. You have really thrown a lot of new light, and at least to me, I have been really educated. One fundamental education was, I never knew that a child right is not given beyond 14, and it's very valid reason. If 18 is a age after which I am considered an adult, before that I am a child. That's correct. In any case, so where do otherwise 4 साल तो मैं लटक रहा हूँ. I'm neither a child nor an adult. I'm hanging in between.
So it is a misnomer. It must be corrected. And your second issue, sir, this child helpline, it is just an absurdity. I think it goes to women cell, something. But it's something, It's being transferred something to going home back. ministry, at least to police. It is just dragging us backward. Something when a child abuse things are managed by people who knows this subject with compassion, with empathy. And if that goes to the police department, excuse me for saying, police department Yes, will yes. never carry their empathy. No, I'm saying, not excuse. I am opposing. Police, everybody may support, but I am opposing. In fact, I have written a very longish note to Stuti ji, and I am going to meet her if she permits me. If she comes back from Calcutta, then I'll meet and very strongly argue for it. And इसलिए स्मृति जी, sorry, not स्तुति जी यहाँ बैठी हुई है. तो अगर I would like you to really support this move, because it's not a good move. Let me tell you. You understand better than me. Decidedly, you understand better than me. But आप कुछ बोले ना स्तुति जी, आप क्या कह रहे हैं आप? Stutiji's voice will be important in this. I know. आवाज आ रही है ना आपको? आपका स्तुति जी का माइक बंद है. हाँ, माइक बंद है आपका. माइक आप इसको अनम्यूट कर दें. अनम्यूट. Yeah. आ गया. Actually, NCPCR में one of our brighter ideas was कि एक child friendly police station हम लोग establish करें. तो उस समय MHA ने मना कर दिया कि पहले वो अपना काम कर लें तो फिर ये सब काम करेंगे. But let us see now whether our HM, Honorable HM, he takes over Childline or not. Let us see. Madam, excuse me for interfering, but child-friendly police station would mean some police station will be transferred here. No. It's not that. It's a concept of जब ये लोग जाते हैं जैसे पॉक्सो केस के या चाइल्ड क्राइम केस देख, the way of handling वो दिया भी है एक्ट में कि यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, ये नहीं करेंगे. It's a standard protocol. Sure. And it is done in many countries. I mean, they have a different way of handling such children. Children के लिए एक अलग provision है, because as they say, the psychology of it is कि the child का mind is a developing mind. In fact, कहते हैं कि 25 साल तक ये mind develop करता है, and a child is always prone to risky behavior. तो child को adult की तरह treat करना तो ठीक नहीं है. And we have to be careful. I mean, there are many things, क्योंकि वही एक समय है कि अगर बच्चे ने गलती भी करी है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं. एंड दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ द JJ एक्ट कि बच्चे को सुधारा जा सकता है, अडल्ट को नहीं सुधारा जा सकता है. तो इट इज समथिंग. लेट अस सी नाउ व्हाट MHA सेज अबाउट इट. आई डोंट नो स्मृति जी को क्यों इतना किसने एडवाइस किया है, आई डू नॉट नो. बट यस, मुझे तो शक है, मैं इंक्वायरी नहीं किया, मुझे शक है कि ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी बिटवीन टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स और तभी ये मूव किया गया होगा. ऑब्वियसली. बट वो मेरे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस भी बनवा दें उसके साथ साथ. ऐसा है कि उनका रिस्पांस जो है आपने देखा है ना कि हेल्पलाइन जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्ड वायलेंस अगेंस्ट, आई नो नहीं हैंडल कर पाएंगे. चाइल्ड हेल्पलाइन में साल में आपको पता है पिछले साल 10 महीने में 44 लाख के कॉल आया. 44 लाख 10.5 महीने में. और आपको पता है कि कोई 4.5 लाख केसेस इंटरवेंशन केसेस थे, और चाइल्ड अब्यूज के केस सबसे बड़े थे इसमें इस पीरियड में, because they were locked in with the abuser ना. कोविड पीरियड में हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड अब्यूज के केसेस हुए हैं, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत हुआ है. और हेल्पलाइन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था. बल्कि फॉर्चुनेटली नीति आयोग ने मुझे हेल्प किया. अभी मैंने नीति आयोग से मैं लिखा कि भाई ये तमाम जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए, और इनका मतलब कि जो इंजेक्शन दी जाए और सारी चीज़ किया, सपोर्ट इनको किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए. और वो फॉर्चुनेटली वो एग्री कर गए नीति आयोग ने लिखा है हेल्थ मिनिस्टर को, और हम लोग परसुएड कर रहे हैं कि चाइल्ड लाइन के तमाम लोगों को ये वैक्सीनेशन की जाए, पहले प्रायोरिटी पे की जाए.
और शायद वो मान भी जाए। तो ये तो मतलब सोचने की बात है ना कि इस ढंग के सिस्टम को जो डेवलप कर रहा है, पिछले 30 साल हो गए, 22 साल हो गए चाइल्ड हेल्पलाइन के। 1998 में पहली चाइल्ड हेल्पलाइन प्रयास में आई थी, आपको पता है। फर्स्ट चाइल्ड हेल्पलाइन केम टू प्रयास 1998। 22 साल हो गए, 23वां साल चल रहा है। अब जाके इस सिस्टम को तोड़ना जो बड़े मुश्किल से बच्चों को प्रोटेक्शन देने की स्थिति में आया है, थोड़ा बहुत उसको तोड़ देना, उसको डिसमेंटल Yes, करना। but to think that the Home Minister would have known about Childline is, I think, far-fetched. Somebody must have asked, advised हाँ बस Madam ये Irani. कुछ भी हुआ है, to represent it now also it is very purposeful. Actually, WCD में हम एक चीज बताएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो women are crowding out space for children. You know, it is something I feel very strongly about. They must have two departments, women अलग, children अलग, तभी इस पे फोकस आएगा। हमारे डिसेबिलिटीज में भी यही था कि मेन मिनिस्ट्री जो थी सोशल जस्टिस की, वो डिसेबिलिटी को तो एक छोटे से डिवीजन में एक 2 कमरे में बैठाले हुए थी, और जब वो नया डिपार्टमेंट बना तो ऑल इश्यूज ऑफ डिसेबल्ड बने। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने भी कहा ये तो दिव्यांग है और विकलांग नहीं। आई मीन तो एक अलग से फोकस हो गई, एक आइडेंटिटी पैदा हो जाती है। बच्चों के साथ ये है कि कोई सुनता नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम यू गो टू द मिनिस्ट्री कोई ना कोई और बर्निंग इशू है। बच्चों के इश्यूज पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। Women issues become more burning. Women issues become more burning. Yes, because children have no voice. And main thing, no voice. Like the tiger who is shot in the jungle, the tiger has no voice. हाँ, but बच्चों का ये है ना, they have been in bad news all the time. Juvenile crime takes over everything, but genesis of juvenile crime पे कोई जाता नहीं है. They have to go into that, and this is where all this entire 1.5 hours we have spent. A lot of crime ka genesis goes back to childhood, about treatment meted to children. You know, we don't do enough research in India, but it's something that we really need to get into. Each person, when you go back and you examine what were the causative factors of that person's crime career, you will find that somewhere there was this orriness in childhood. आपने बिल्कुल शुरू में एक बड़ा वैलिड बात बोला कि children are actually not, we should not consider it as our property. Yes. It is a caretaker. And exactly, I got a grandchild recently on the 1st of November. Congratulations. Thank you. And my son and daughter-in-law, they are in Sweden. So they are born there. And 4th day, when my daughter-in-law was discharged from the hospital to come home, they had to sign a bond that yes, this child you are taking to take care of, it is not yours. It belongs to the state. Good point. They had to sign a bond. And they are the caretakers. Every citizen of Sweden is given an allowance to maintain the child. And they come and inspect. And all treatment, everything is their responsibility. Vaccination कब लगाना है, hospital वाले will give you a call. Okay, bring him tomorrow, bring her tomorrow. They don't remember at all. Vaccination कब लगाना है, क्या करना है. Nothing. Actually, these countries have learned from their bad experiences, ना? Yes. जो आप कभी child movement का देखिए, वो पहले orphans की train होती थी, which used to take all the orphans World War II के. बहुत सारे बच्चों के बहुत issues हैं, which unfortunately दबे रह जाते हैं. Anyway, I think Shashank ji, we have taken so much of Amod ji's time that I am feeling guilty. Okay. Now let me give a formal vote of thanks. What more thanks? नहीं, एक किसी को कोई important बात कहनी हो, एक बार पूछ ले. Somebody wants to say something amongst others. ये बात कर पाएंगे? Anybody has any question, you can just unmute your mic and put your question. आप कुछ कह सकते हैं. चिल्ड्रंस होम पूर्णिया से कुछ कहना चाहती हैं आप? चिल्ड्रंस होम पूर्णिया कौन है वहां पे? वो आपका होम है. अनम्यूट कर दे. हाँ, एक प्रयास का होम मैं देख रहा हूँ.
ये लोग आपस में हाँ। बात कर रहे थे, मैंने ये प्रयास आप का अनम्यूट कर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके दे कैन पुट द क्वेश्चन। अनम्यूट कर दो इस पे, आपके यहाँ पे म्यूट मत, अनम्यूट करें आप। पूर्णिया से ये लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, हाँ, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्णिया हम देख चिल्ड्रन यहाँ पे। होम से मौजूद हैं। हम्म। पूर्णिया चिल्ड्रंस होम, आपको सुनाई दे रही है हमारी बात? वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है शायद, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। उसमें हाँ, नीचे वहाँ एक माइक लगा हुआ है, माइक पे क्लिक करिए, तो माइक पे क्लिक करिए, माइक पे माउस ले जाइए और क्लिक करिए। जी सर। परिचय दीजिए अपना, परिचय दीजिए आप अपना। हाँ, हो गया। मैं कुमारी काउंसलर चिल्ड्रंस होम पूर्णिया। हाँ, हाँ, आप आपने बताइए, आपका आपके सामने कोई बात है तो बताइए। मैं बच्चों- सीमा कुमारी, हाउस मदर चिल्ड्रंस ऑफ पूर्णिया। चिल्ड्रंस नहीं, वहाँ आप बच्चों का होम चलाते हैं, आप बताइए कि आप ये क्या सोचती हैं आप? बच्चों के बारे में कैसे हालत में बच्चे आते हैं यहाँ पे, किस हालत में बच्चे सर, सर हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर, मिसिंग चाइल्ड, ये सब बच्चे आते हैं जिसकी स्थिति शुरू में सर वो तो आते हैं एक तरह से समाज के मुख्य धारा से हट के, लेकिन उसको समाज में जोड़ने के लिए या समाज की गतिविधि है, कोशिश करते हैं उसमें वो ढले और ये सामाजिक परिवेश में वो अपना जिंदगी जीने के को ये करें। किस उम्र में आपके यहाँ आते हैं? जी नॉर्मली किस उम्र में आते हैं आपके पास? 7 से अंडर 18 तक। अच्छा, और स्कूल जाते हैं यहाँ से? दे गो टू स्कूल? जी सर, जी सर। 7 बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं सर। अच्छा, हमारे यहाँ अभी 32 बच्चे हैं और जिसमें 18 बच्चे सर स्पेशल नीड चाहिए। 18 बच्चे स्पेशल हैं। जी यस सर, यस सर। तो स्पेशल नीड के बच्चे को कैसे आप आप देखिए नंबर, आधे बच्चे स्पेशल हैं, आप सुन रही है ना? आधे से अधिक आधे सर। का- मतलब अभी आधे। जी एक्चुअली स्पेशल स्पेशल बच्चे चिल्ड्रन को जो होते हैं ना, देते हैं। दे ऑल अबैंडन्ड, जितने स्पेशल बच्चे हैं। नहीं, बट अबंडन स्पेशल बच्चे हैज टू बी बहुत मुश्किल है इनको। हाउ डू दे आप डू क्या इट? है स्पेशल? डिसेबल्ड चिल्ड्रन को मोस्ट पीपल डोंट वांट देम। हमारा तो ये डिसेबल नहीं है, ये लर्निंग नहीं डिसेबल नहीं है। नहीं, स्पेशल चिल्ड्रन मींस ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड। फिजिकली हैंडीकैप 3 बच्चे हैं ओके ओके, और बाकी मेंटली डिसऑर्डर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम के कितने बच्चे होंगे? मेंटल प्रॉब्लम में कितने बच्चे हैं? 15 सर, 15। हैं? बड़ा मुश्किल होगा इनका काम। बताइए, जी सर। अब बताइए कि ये होम कैसे चलेगा? आप बताइए कितनी कठिनाई इस होम में होती होगी, इमेजिन नहीं कर सकते सर, हम लोग केयर कर लेते हैं सर, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। बच्चे को प्यार से समझाते हैं, बच्चे समझते हैं सर, मतलब अपना सेल्फ केयर खुद कर सकते हैं। पहले आते हैं तो सर सेल्फ केयर नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ मतलब सर जैसा मैम बोली है, जो बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं वही बात यहाँ यहाँ है, है। और वो सही है। जो बच्चों जो है वो दूसरे बच्चे को देखकर बहुत कुछ अपना दिनचर्या में चेंजिंग करते हैं आने के सेल्फ बाद। केयर सीख एक बच्चा दूसरे बच्चा से सीख लेता है। जी 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 सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, तभी मैं इंस्टीट्यूशनल केयर को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ हाँ कि हाँ, इंस्टीट्यूशनल केयर के बिना बड़ा डिफिकल्ट है। ये बच्चे, इस ठंड के बच्चे जो पहुंच जाते हैं हमारे होम्स में, उनको कहाँ ले जाएंगे आप? बहुत थैंक यू। विकल्प ही नहीं है कुछ, जब फैमिली नहीं ले रही है तो उनका तो विकल्प ही नहीं है। वो अपना कहीं ना एड्रेस कहीं पे- बताने में भी सर असमर्थ रहते हैं, इसलिए उसका रेस्टोरेशन सर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं से कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने का इंतजाम सर हमारे यहाँ स्पेशल यूनिट चलती है सर। इट विल पर्कोलेट डाउन टू अदर्स। Shashank ji, you can have a special webinar on how to bring up different types of disabled children, because हमारी और आपका तो जान पहचान इसी के learning disorder से हुई हाँ, थी। हमने तो चलिए। लर्निंग डिसेबिलिटी से बहुत कोशिश किया था। मोहम्मद खान जी ने भी हमारा बड़ा साथ किया था। Let us see what we can do in the disability area, because उसमें तो बहुत experts मिल जाएंगे। हमने वो कॉन्फ्रेंस किया था, हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था इग्नू के सपोर्ट से। जहाँ मुझे याद है। चलिए, now we need to wind up.
We need to wind up, otherwise he will kill us for not for stopping him from going to the Okay. falls. Okay, okay. Thank you very much. Thank you, sir. आपके अमोद खान जी आपके छुट्टियों पे हमने दखल दिया. Your holidays we have intruded upon. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं अपने बेटे को समझा लूंगा, अपनी पत्नी को. So kind of you. Thank you very much. मैं समझा लूंगा इनको. Thank you बहुत for धन्यवाद. everything and thank you, Stuti ji. No, thank you Thank so much for holding this session. Thank you very much. Thank you very Thank much. you all of you. Thank We you. can close now. Thank you. Okay. हाँ, Thank you. अमोद जी, thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू, Thank you थैंक very यू, much. थैंक यू सर, थैंक यू.
Yeah.